سب سے پہلے میں تشریف پیش کرنا چاہتا ہوں کھانے کے بارے میں جو 1970 عیسوی میں اس کے اپنے کھانے کی بنیاد رکھی اور ان کے ساتھ بہت سارے اس زمانے کے بزرگ جیسے آجا جی صاحب ڈاکٹر صاحب کو اور اس زمانے کے جو بھی بزرگ ہیں اس ادارے کو سماج کا شکشا تھوڑا سا سائلنٹ ہو گیا تو ان سبھی لوگوں کو پہلے تشریف کرنا چاہتا ہوں خدا سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو جنتی مقام میں آنا مقام دے۔ سب سے پہلے غور کی بات یہ ہے کہ یہ سارے بچے اور بچیاں جو بھی یہاں پر ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں اسٹاف ہیں ہمارے اساتذہ ہیں سب عزت کے باعث ہیں اس لیے کہ اسلام و حقانیت جو دور چل رہا ہے زہریلے دور چل رہے ہیں فسادات کے دور چل رہے ہیں اور لاوحدانیت کے دور چل رہے ہیں اس لیے اگر ادارہ اس طرح سے بچے جو سفروں سے دین اور اسلام کی چیزوں کو لے کر اردو اور عربی کو لے کر چل رہے ہیں یہ میرے لیے سب سے بڑی عزت کے لائق ہے سارے بچے بچیاں جو اس تعلیم کو اپنے ہاتھوں میں اس لیے یہی لوگ جو ہے معاشرے کو بنائیں گے آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے معاشرے کی تہذیب تمدن خدا اور خدا کے رسول کی ہر وہ باتوں کو گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو ڈاکٹر بن جائیں گے انجینئر بن جائیں گے فلاسفر بن جائیں گے سائنٹسٹ بن جائیں گے اس سے کوئی فائدہ ہمیں سمجھ سے نہیں آتا اس سے دنیاوی فائدہ ہے لیکن اگر دینی فائدہ اگر اٹھانا ہے تو حقیقت ہے کہ مدرسوں کی طرف بچوں کو توجہ دلانا ہوگا اور بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ دینی حساب سے ہر گھر میں دینا ہوگا اس لیے ایک بچہ مدرسے کا باشعور ہوتا ہے حلال و حرام کی اس کی اچھی پکڑ ہوتی ہے کہ کس چیز سے ہم دور رہیں کس چیزوں سے ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل کو جیتیں یہ سارا چیز اگر کسی کے ذمہ ہے تو وہ مدارس اساتذہ اور بچوں کے ذمہ ہے اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے انسٹیٹیوشن پر جاتے ہیں وہاں ایک ماڈرنائز کلچر ہے ایک الیکٹرانکس کلچر ہے ایک ڈیموکرائزیشن کلچر ہے ایک ایڈوانس کلچر ہے لیکن وہ کلچر ہمارے صحت کے لیے باعث کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے اگر زندگی کا لاسٹ اسٹیج جب پہنچتا ہے انسان اس وقت خدا کی طرف توجہ کرتا ہے کہ آپ کو اس طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت ایک ہی دل میں چیز آتی ہے کہ میں کس طرح سے قرآن و حدیث پر اپنی پکڑ اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھالوں اس میں حقیقت ہے کہ آپ لوگ سماج کو بدلنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور سماج کو صحیح راستہ دکھانے کا اگر کوئی ذمہ ہے آپ آنے والے بچوں ہمارے اساتذہ کی طرف سے ہم لوگ دیکھا ہے بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں ہمارے 2 بچے پڑھتی ہیں ناظرت میں لیکن ان کو اردو عربی کی تعلیم دینے کے لیے جتنا محنت مجھے کرنا پڑا تب مجھے یہ یقین آیا کہ کس طرح سے بیسک چیزوں پر لوگ ماڈرنائز فیملی بن رہے ہیں اپنے آپ کو تو بیسک تعلیم کو کیسے دور ہو رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے آپ لوگ ہمارے نظر میں سب سے اعلیٰ سب سے اوپر اور آنے والے وقت میں آپ ہی لوگ دین کے ہیرو بنیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کی اگر یہی محنت رہی تو سماج کو صحیح راستے پر لے جانے کا آپ لوگ دائمی فرض نبھائیں گے اور یہ میسج ہر گھر میں کرنا ہر بچے کو سمجھانا ہر بچے ہیں اپنے قریب جو دوست ہیں اگر ادھر ادھر ماڈرنائز کلچر کے اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کا بھی درس دینے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے اس لیے یہ اسی کی پکڑ ہوگی کل جو علم اور تعلیم کو جانتا ہے اسے اتنا ضرور کہنے جو بھی بچے ابھی کے دور کے جو دین اور اسلام کی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ان سے زیادہ گزارش میری یہ ہے اور اگر آپ کی جو ماڈرنائز کلچر کی فیملی ہے اس میں ضرور آپ ایسے دوست بنائیں دعوت دیں اور ان کو اپنے مذہبی کلچر میں بات کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ حقیقت ہے
सारी दुनिया फलाफिल्ला हो जाएगी अगर दीन और इस्लाम आपका है, बराबर है। तो खुदा ने कहा है कि ट्रेन हेवन प्लेस अगर हम देंगे तो वो उन्हीं को देंगे जो दीन और इस्लाम के रास्ते पर सही से चला। तो ये क्विज में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ये क्विज यहाँ की गई और इसमें पूरे जिले के बच्चे बच्चियाँ हैं, सभी लोग हम इस्तकबाल के लायक हैं, सभी लोग अपने आप में लीजेंड हैं, बड़े हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दीन इस्लाम की बातों को लेकर दम बढ़िए और आगे अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए, जिससे और लोगों भी अपने बच्चे को इस तरह की तालीम दिलाकर मजहबी रास्तों पर लाने की कोशिश करें। यही सब बातों से मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे और ऐसे बच्चों को हमेशा समाज में अदब की निगाह से देखा जाना चाहिए। जो बच्चे हकीकत में मजहबी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, आज क्या हो गया मॉडर्नाइज कल्चर, लोग भूलते जा रहे हैं अपने कल्चर को। हम देखते हैं कि अगर किसी मदारिस का बच्चा उसको बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करते हैं, हम लोग कंडम करते हैं। और आप भी लोग हम लोगों के हीरो हैं और आप भी लोग पर हम लोगों की ज़िंदगी में मंथर है। कुछ बातें हमको भी आप लोग भी जैसे लोगों से सीखने का मौका मिलता है। कुछ हमारे वहाँ पर सुफियान यानी भाई हैं, उनके एक भाई हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ पाया है लेकिन दिन का रास्ता हकीकत है कि वो पकड़ से मेरे हाथों से दूर है। दुआ आप लोग कीजिए कि हम लोग को भी हिदायत मिले, आप लोग के जरिए हिदायत मिले, सही रास्ते पर कायम व दायम रहे और वो निकले तो इस्लाम के रास्ते पर निकले और खात्मा मेरा हो तो इस्लाम के रास्ते पर। आखिर बार में आप सभी को मेरे तरफ से सलामत है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए। और आखिर में इदारा के डायरेक्टर डॉक्टर नबीरुद्दीन साहब की गुजारिश है कि मेरे स्कूल के बच्चे, आपने जिस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहे, इससे अंदाज़ा मिला कि साहब आपको दीनी वाक़ियत है और आप दीन से अच्छे हो। ये एक अच्छी बात है। मेरे तौर पर हमारी बात सबसे ज़रूरी बात है कि इसको हम बाहर लेके कैसे दूसरे लोगों के बीच में, ये सबसे ज़रूरी बात है। अब उसके लिए आपको हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे आला जो है मौका हमारे हुजूर का। तो आला मौका किस दुनिया कौन ऐसी चीज़ शायद उनको दुनिया में सबसे अहम मुकाम होता है। हम उनकी उम्मत है, हम आज परेशान हैं, क्यों हम उनके रास्ते पे नहीं हैं। ये बात काबिल कबूल है कि हम भटक रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि शायद अगर हम इतनी बात जान ली इस मजलिस में, हमने समझा कि वाकई इस्लाम और अल्लाह के रसूल की बात को मानने वाले की जिंदगी है, तो हमको अमल करना चाहिए। और इस अमल से ही आप दुनिया में सुरक्षित हो सकते हैं। और कोई भी तालीम कहीं भी जाने से नहीं रोक। यहाँ के लड़के पढ़ के आगे भी जा रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी लोग हैं, के भी इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं जो अपना काम करके रिटायर हुए। आप भी पढ़िएगा। बहुत से लोग ये बात कहते हुए चले जाते हैं कि तो उर्दू पढ़ने से क्या हो। अगर आप अखबार पढ़ती होंगी या कुछ आपके जहन में बात आती होगी, तो अभी देखिए इतने टीचर की बहाली होती है, उसमें उर्दू वाले किसी बहुत से खाली रहे, पता क्या चला कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं थे, आप अपनी तालीम में इंटरेस्ट लगे नहीं। हम लोग का जो इदारा है जहाँ पढ़ रही हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये दोनों तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता है। चाहता है कि दुनियावी तालीम में भी आपका मुकाम बुलंद और इस्लामी नज़रिए से भी आपका मुकाम बुलंद रहे। सोचने की बात है कि आखिर दोनों चीज़ आपके हाथ में रहेगी। जाहिर सी बात है कि दुनिया में अब चल रही है
आज आप देखते हैं पढ़ते हैं अखबारों में कि शायद बहुत आला तालीम है, बच्चे लड़कियाँ शादी ब्याह करके करते हैं, बहुत आला है, कोई डॉक्टर है, कुछ है, लेकिन अगर उसको गौर से आप मुताला करें तो पता चलेगा कि उनके पास दीन की कमी है, इस्लाम का मामला नहीं है, कोई अपने बाप से लड़ रहा है, बहुत बड़े ऊंचे मकाम पर है, बाप के लोग बुलंद नहीं कर रहा, बल्कि बाप के वकात को गिरा रहा है। और से सोचिए तो क्या होगा, बाप की खिदमत, माँ की खिदमत हम पर फर्ज है और हम इससे दूर हो रहे हैं, परेशानी पैसा कमाने की, परेशानी में शौक नौकत के लिए, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। अगर काम आने वाली चीज़ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सही ताल्लुक, देखिए डॉक्टर साहब ने मेरे बात की कि साहब आप दुआ कीजिए कि साहब हम सही रास्ते पर रहें, डॉक्टर साहब भी सही रास्ते पर, लेकिन आपके हालात को देख के इनका ध्यान मतलब छल गया, दुख पड़ा कि सर नहीं हमको तो ऐसा मौका मिलना चाहिए, अल्लाह करे कि आपको ऐसा मौका मिले। और तुम लोग को भी हम कहते हैं कि भाई तुम लोग भी दिल लगा के पढ़ो, हम लोग का नाम रोशन करो, इदारे का नाम रोशन करो, अपनी ज़िंदगी में अपना काम रोशन करो, अपने बाल बच्चों को अच्छे से तरबियत दो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। देखिए सामने लिखा हुआ है कि बड़ों का अदब छोटों से प्यार, जो ऐसा न करे वो हमें नहीं है। कौन कह रहे हैं? तुम कह रहे हैं, हम लोग से कह रहे हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं जो अपने से छोटों का प्यार नहीं करते हैं, बड़ों का अदब नहीं करते हैं। सारी चीज़ें आपको हर राह में बताएंगे कि आप उससे आसानी से चलें। हम सर आपका आखिरी वक्त हो रहा है, छुट्टी का वक्त हो गया तो काफ़ी वक्त नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप लोग भी परेशान होंगे, साहब ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो खैर ठीक, हमारी यही दुआ है कि आप लोग सही सालिम इस्लाम के सही रास्ते पर चल के अपना और लोगों का नाम रोशन कीजिए। हिस्सा क्या है उस ऑफिस के लिए भी छोटा सा तोहफा दिया जाता है। स्टार 30 हॉस्टल मोइनुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और सदर साहब के हाथ की तरफ से कोई भी तालिब इल्म एक आए। सदर साहब के हाथ म्यूजिक बच्चों के दुकाना मेरा करवाना न्याज साहब डायरेक्टर साहब के हाथ से सद्दाम साहब कोई भी असासा है कार्य जरूरी है मजलिस के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी, घर के लिए भी, स्कूल के लिए भी, कॉलेज के लिए भी अदब जरूरी है। जिसके अंदर अदब नहीं, तालीम जितनी भी हो वो जाहिर की स्पिरिट में। अब प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका, पहले बच्चियां बाहर की जो है वो चली जाए।